18 जनवरी को राजेंद्र विद्यालय साकची ने अपनी वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जहां विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने विविध प्रकार की प्रदर्शनियां प्रदर्शित की। Good morning. This is our model from waste to energy converter. We have used solar panels and we are actually burning the waste here, and from the firelight the solar energy gets powered, and there we have made a one-way circuit from which the energy from the solar panels we get the batteries charged, and these batteries are used to power the lights and sockets in our home, and these switches are used for showing that the circuit is on, and these lights are connected here to show that the solar panels are working properly. We also got a question that what happens to the waste gas which is produced from burning this waste. So we have also created a air purifier which converts not purely, but it converts likely much of the carbons produced 80 from to 90% is carbons produced from the burning gas, and these carbons get filtered from this alkaline solution, and then pure air is released in the atmosphere. And this is only our model. The idea behind this is because India is #1 in the population list, and we have a garbage problem, so we need to do something with the garbage. Good morning. This is a cell membrane. This is made up of layer of lipids and proteins. These are alpha helix structures, and these are proteins. These are cholesterol. So this is a DNA structure, double helical structure, which is made of by Watson and Crick, which is proposed in the year 1950. So basically nitrogenous base is there, which is made up of purines and pyrimidines, and these are deoxyribose pentose sugar. That this water can now use for bathing, clothing and many other things, or for drinking also, but it has to pass from an advanced filtration system. As we can see that the meter is reading out, so we can also use this for the things that are available, such as planting or washing our clothes. As we can see that rainwater harvesting is needed due to scarcity of water, decrease in the level of water and increase in the water pollution. Thank you. Module. So mRNA vaccination works on the basis of a part of mRNA vaccine is introduced in the cell, which by using this mRNA, the cell produces the viral protein, which is usually present on the outer surface of the membrane. Now these cells, as a part of human immune response, the immune system produces specialized proteins called antibodies. Now these antibodies protect the body against the infections and individually attach themselves to the spike proteins of the coronavirus, which finally leads them to prevent their infection and spreading. Thank you. Good morning. This is a amphibian ecobot which is made by myself, purely totally new idea. This amphibian bot picks garbage from land and water both and cleans the water. It solves the problem for the rag pickers which they face. The rag pickers most of the time get infected in their wound when they go to the waste dump yards and pick the trash. But this garbage sorter is very much useful for them. I would like to demonstrate this. See, this moves in all direction, is completely remotely operated. Powers are also good. See, this lift is used for picking up the trash, and then the trash through the conveyor belt it goes inside this chamber. यह प्रदर्शनी बच्चों के लिए विभिन्न विषयों में अपने नवाचार और ज्ञान को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट अवसर था। इसने उनकी परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और इंटरैक्टिव आकर्षक तरीके से सीखने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। कुल मिलाकर यह एक सफल और समृद्ध कार्यक्रम था, जिसने छात्रों की उपलब्धियों और प्रतिभा का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में 150 से 200 मॉडल प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सतीश कुमार, प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, NIT जमशेदपुर, डॉक्टर कुणाल सिंह, प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, NIT जमशेदपुर, डॉक्टर KK सिंह, प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड एस्क इंजीनियरिंग,
NIT जमशेदपुर उपस्थित थे। आज राजेंद्र विद्यालय साक्षी कैंपस में स्कूल ने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था और इस एग्जीबिशन का उद्देश्य है कि बच्चों में जो सोच है उसको प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति और आगे आने वाले फ्यूचर के प्रति उनको सजग करना और उसके प्रति सजग होके वो सोचे कि वो कैसे शिक्षा ग्रहण करते हुए समाज को, प्रकृति को, देश को वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इस उद्देश्य से हर साल स्कूल एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है जिसमें लोअर केजी से लेके स्टैंडर्ड 12 तक के बच्चे इसमें भाग लेते हैं और वो कुछ अपनी जो उनकी जो सोच है, उनकी जो कलाकृति उनके दिमाग में है, उसके द्वारा सामाजिक जो आज प्रॉब्लम्स हैं उसका चित्रण करने का वो प्रयास करते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में भी सोचते हैं। तो यहाँ जो बेसिक उद्देश्य है, जो आइडिया है कि कैसे बच्चों के माइंडसेट को हम समाज और प्रकृति के प्रति, देश के प्रति जागरूक करें, यही ये आयोजन था। और इस आयोजन में बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, काफ़ी उत्सुकता से भाग लिया और आज के जो जज का जनरेशन है, ऐसा पाया गया है कि उनके अंतर्गत आइडिया बहुत है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, उनके पास एनर्जी बहुत है, उस एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है जिससे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ अच्छा कर सके। और आज जैसा हम लोगों ने देखा कि 200 से अधिक जो बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट, बहुत से बच्चों ने बहुत से कॉन्सेप्ट्स के बारे में प्रोजेक्ट्स के थ्रू, एग्जीबिशन के थ्रू दर्शाने का कोशिश किया कि ये जो कॉन्सेप्ट से कैसे काम करते हैं। कुछ बच्चों ने आज जो हमारा देश या समाज या जो ह्यूमन फेस कर रहा है प्रॉब्लम, उस पर कैसे हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उसको भी उन्होंने प्रदर्शनी के द्वारा वर्किंग मॉडल के रूप में दिखाने का प्रयास किया। जैसा हम लोग हरदम सुनते रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और हम लोग कोयले का उत्पादन जो यूज़ कर रहे हैं और उससे बिजली बनाते हैं, तो जो हमारा प्राकृतिक जो रिजर्व है वो भी ख़त्म हो रहा है, प्लस उसके बहुत से हानिकारक उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो अभी हम लोग सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो बहुत से बच्चों ने सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत से एग्जीबिशंस, वर्किंग मॉडल उन्होंने रखा था और ये दर्शाने की कोशिश की कि कैसे जो नेचर में बहुत से एनर्जी, ऊर्जा जो व्याप्त है, उसको हम समाज के लिए, ह्यूमन रेस के लिए कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ जो नेगेटिव उसके इम्पैक्ट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, वो सब को भी हम कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों ने कलाकृति के द्वारा बहुत से वेस्ट से उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई है जिनको आप रूम में, अपने ऑफिस में, जहाँ भी आप रहते हैं उसको सजावट के रूप में यूज़ कर सकते हैं और वेस्ट को आप यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने दिखाया कि आप वेस्ट जलाते हैं लेकिन आप छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें से दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो ताप जो हीट बोलते हैं और दूसरा बहुत से धुआं निकलते हैं जो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं और वेस्ट भी हो रहा है। तो बच्चों ने कुछ एग्जीबिशंस लगाए थे जिसमें उन्होंने दर्शाने की कोशिश की कि हम कैसे उस हीट को, जो आप वेस्ट को बर्न कर रहे हैं, उस हीट को हम रीयूज़ करके सोलर पैनल के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप बिजली की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। धुएँ को कैसे आप पानी के द्वारा उसको डिज़ोल्व करके और उसको आप सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों में इस तरह की जो सोच है बहुत अधिक है, एनर्जी बहुत है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हर स्कूल, हर संस्थान उनको एक प्लेटफॉर्म दे जहां और उनके एनर्जी को चैनलाइज करे, जिससे कुछ काम की चीज़ें, कुछ समाज के कल्याण के लिए, कुछ देश के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए कुछ सोचा जा सके और यही आगे
में बढ़ के यही सब आइडिया जो छोटे छोटे चीज़ हैं ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप में चेंज हो सकते हैं और अच्छे बड़े रोजगार की भी यहाँ पे क्रिएशन हो सकती है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो बच्चे उनका माइंडसेट रहता है कि हम पढ़ रहे हैं किस लिए, तो नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी देने वाला भी होना चाहिए। खाली नौकरी लेने वाला होगा तब ये शायद पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों के माइंडसेट को हम जॉब टेकिंग माइंडसेट से जॉब क्रिएशन माइंडसेट हम कैसे चेंज करें, इसमें भी हमारा फोकस रहता है। और इस तरह के इवेंट से बच्चों में ये जो सोच है उसको हम लोग आगे बाहर लाने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ पर राजेंद्र विद्यालय में स्टूडेंट क्लास 1 to 12 लेवल स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा एग्जीबिशन किया था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 180-200 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और स्टूडेंट्स ने साइंस ग्रुप एज वेल एज द आर्ट, कॉमर्स, डिफरेंट टाइप के इन्होंने ग्रुप्स एक्टिविटीज़ करके एग्जीबिशंस मॉडल्स प्रिपेयर किया था, जिसमें बच्चों ने जो साइंस एग्जीबिशन ग्रुप था उसमें बच्चों का जो मोटिवेशन था वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की ओर एवं जो आज की सोशल नीड्स है वेस्ट मैनेजमेंट्स उस पर आधारित था। बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ तो बच्चों के अंदर ये देखने को मिली कि हाउ दे हैव कन्वर्टेड द क्रिएटिव थिंकिंग इनटू द फिजिकल फॉर्म। उसको इन्होंने प्रैक्टिकली डिस्कस करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और एक फिजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। जो ये एंड दिस विल गिव इन द फ्यूचर फॉर द सम कंप्लीट द फ्यूचर नीड्स। सेकेंड, आर्ट्स ग्रुप के कुछ बच्चों ने मिल करके जो लोकल आर्ट्स हैं और वेस्ट मटेरियल यूज़ करके बच्चों ने बहुत अच्छा मॉडल प्रिपेयर किया था। इवन बहुत सारे शोकेसेस बनाए जो कि न्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज़ करके डिफरेंट फेस्टिवल और उस पर यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं शोकेसेस के लिए। एंड आर्ट से रिलेटेड भी बच्चों ने अपने मॉडल्स और अपने ग्रुप के द्वारा जो है मॉडल्स के रूप में अपने विचार उसमें जो उनकी थिंकिंग से उसको रिप्रेजेंट किया। सो एक बहुत अच्छा प्रयास था। आज राजेंद्र विद्यालय में एनुअल एग्जीबिशन किया गया, जिसमें लगभग 200 बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। अलग अलग मॉडल्स बनाया गया जिसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों ने वेस्ट से बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं जो डिस्प्ले में रखा गया है और ये पूरे स्कूल के बच्चों को दिखाया जाएगा। इसका मेन मकसद है कि बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाए, बच्चे सोचना सीखे कि कुछ नया कैसे करना है ताकि वो अपने भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ अच्छा कर सकें। न्यूज़ एक्सप्रेस 7, चलना है सच्चाई के साथ।